Welcome you all with Shivraj. This is the another session on the equalization term. So in the last session, we looked at the importance of equalization, why the equalization is important, what is equalization actually, and even we looked at the performance fees and the management fees that investor paid to the hedge fund manager to manage their fund. Okay, so this equalization concept is related to the incentive fees and management fees that as an investor we paid to manage the funds or to take the investment decisions and all. Okay, so actually the incentive fees or the management fees, that is the income of a hedge fund houses, what they earned, right? And if investor they don't pay the incentive fees or the performance fees, suppose you are working with xyz hedge fund house, for example nt or Citco or apex and all, then you won't get salary. As simple as that. Your salary is also the part of that, the incentive fees. Okay, because after all, as they mentioned, like the 1 trillion asset is under management. So asset under management is not the asset of hedge fund house. They are only aligned to charge performance fees and administration fees, or the whatever cost has been discussed at the time of launch or they sign the agreement with the investor. Okay, so as simple as that, they are entitled to receive performance fees only, and the performance fees is the only single source that is having uh, with the for the that hedge fund houses. Okay, so that is what the equalization is quite important. And as well as it shouldn't be burdened, or it shouldn't be discrimination in terms of charging the incentive fees to the investor. So it should be equally charged to the all the investor. And as we know that, because hedge fund is also the pool of the investment, where the investor can contribute some amount of capital to invest in different variety of assets, right? This, and that is what, when you see the number of investors, so it means we need to treat all the investors equally in terms of return or in terms of the cost we charge. As simple as that. Otherwise, if you don't charge fees equally to the investor, then it will overburden on someone else. And I think that is what this equalization concept come into picture. With the in the last session I had mentioned, like with a few companies you can see we have to calculate performance fees manually, but with few companies there is a Trinity platform where they can enable Trinity enable to calculate this equalization or performance fees via their application. So they provide some calculation part, so you can easily calculate it. As simple as that. But with a few because this is the calculation of fees is really the difficult one task. So we cannot calculate easily. There are a few methodologies, there are a few types to calculate the incentive fees or performance fees. Okay, so we'll look to that in this session. There are many more, but we'll just uh, we'll 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 just cover one in this session and we'll discuss it. Rest, I'll share the notes to you so you can go through it and read it, or else you can even search it on Google as well. But this is just the important element of the hedge fund process, or the mutual fund process, or even you can see the same in private equity fund as well. So that is what I just wanted to share this important information with you. So even you can see this task at operational level as well, right? Because a few companies you can see like they are calculating the performance fees and they are calculating the cost and other factors, right? Administration fees and all. So they might be using the techniques, this equalization techniques. Okay, and even also you get also chance to work on those techniques. Okay, and you should know that even from an interview perspective,
most of the interviewers they ask questions on this part, because this is something critical activity to calculate the performance fees, because which is not even easy. Why which is not easy? Because most of the portion they invest in the volatile product like equity, and that is what which is not easy to calculate the fees in the rising market and even volatile market or falling market. Okay, so it's a bit difficult. So according to that, you can see some approach to calculate the performance fees or incentive fees. Okay, so there are different types of approaches like simple equalization in the rising market, simple equalization in a volatile market, simple equalization in a falling market, or maybe equalization factor and depreciation deposit and all. Then equalization adjustment approach, equalization approach in the decline market. Decline market means that definitely the market is going to decrease now. So for example, let's say suppose the take example of Nifty. Now the Nifty is at all-time high situation, right? So that is a rising market, or else you can see some time market ups and downs with 100 points or more than that. So that situation called as volatile market. Or the sometime in a COVID situation that we all have experienced it. The market was decreasing or decline day by day by almost 50 point or 100 point to 200 points. So that was the decline market type, because when the okay, so anyways, the market, whether they rise or whether they decline or fall or volatile, so in every situation your the investment get affected, whether in terms of positive effect or whether in terms of negative effect. And according to that, they charge the fees to their investor, because after all, so your fund manager can decide so what amount of fees he is looking to charge on that particular investment, right? And that's what on the basis of investment management agreement, right? So there are these terms that you can see, and even you can read this information in Google as well, but this is something the really important one that we should know, we should aware about it before set for an interview. Suppose if you're looking for a H1 interview, then you should know that. And even you suppose you are a qualified chartered analyst, or suppose you are the CA, or maybe you have pursuing C and all, or the other the CMA and all. So in that case, definitely they ask questions on this part, because this is a calculation part, so we should know that. And suppose you are just a fresher, or maybe suppose you have a 2.5 years of experience into the same the hedge fund and all. So in that case also there is a possibility where the panel can ask questions on this part, so you should know all the information. Okay, at least you should know one of the techniques, or else other techniques list you should know, so how they work and all. Okay, because uh, after all, when you joined any company, there you can see such platforms or techniques or tools to calculate the fees and all. So you should know that what is the incentive fees, or how you calculate it, or what is the equalization term and why that is important and all. Because when you charge, okay, so we will what we do, we'll take example, and to see if there is no equalization, then what effect will be there on the different investors. Okay, and before that, as I mentioned, in this session we'll take one concept and we'll discuss on it. Okay, so there are different types of the equalizations. We'll look to one. So okay, so like as I mentioned, so we'll look to one concept. So today the concept is this simple equalization. The procedure is to calculate. So okay, so what is the meaning of equalization? So simply that the procedure is to calculate the performance fees and allocate it fairly between each investor, okay, or group of investor at the end of the each accounting period. So it means we calculate or we charge the incentive fees on a quarterly basis. Okay, every quarter or at the end of the quarter we have to calculate it, and we have to charge or allocate that fees to all the investors account. Okay,
But we calculate the fees quarterly, but in the hedge fund process, so hedge fund investors, they process the fees annually. Okay, so that is a challenge. Because but yes, as we know that there is a concept like accrual concept in accounting, we have to put that or mention that, or you know in the accounting statement as well, like the dues received or receivables from the investor and all. Because after all, we charge that fees on a quarterly basis, so we should put that value in the financial statements. Okay, as an investor will have come in at different levels, so this will mean calculating different navs per investor. However, in order to get a common nav for all shares in the fund, the lowest of all the navs calculated on an investor by investor basis is selected to become the navs of the fund. And what are the main objectives, like what is the main objective of this equitable process? Because most of the time interviewer ask question on this. It should be equitable allocation of incentive fees to all investor. It shouldn't be any discrimination between the fees, because we cannot discriminate in the returns what we offer to the investor. Because when suppose the xyz fund earn 10% return for this particular quarter, right? Even we distribute that 10% return to all the investor, we cannot discriminate that on the basis of their fund or entry level and all, right? As simple as that. So it shouldn't be even discrimination in the fees allocation. Also, it should be charged equal fees to all the investor. Second is, all investor have same capital risk per share. Even so, from a risk aspect also, they should have equal capital risk. Okay, then it should have a single NAV per share. Published NAV accurately reflect the fund's performance. Okay, because if we don't publish NAV, published NAV correctly, then definitely so it goes in the wrong information to the stakeholder, and even we cannot trace to the performance of the hedge fund as well. So from a tracing purposes also, the nav, correct nav is important. And when we can calculate the correct nav, when we deduct the actual performance fees, or whatever the the net performance fees that we have charged to the hedge funds, so then and then only we gonna be reflect the accurate nav only. Okay, then the other thing is, the method used should be easily understood. Okay, so this is something important. As I mentioned, there are a few methods that can be used to calculate the performance fees, but the method should be easy to understand to whom, to investor, and even to the regulator or to the other stakeholders. Because as simple as that, suppose you have used the critical one method to calculate or to charge the performance fees. So in that case, if the investor, if they are not able to understand your methodology, then it means they cannot continue with the hedge fund, with your hedge fund or scheme. Because ultimately, hedge fund has no capital. They are using the someone else capital, and they are generating the returns on it. So as simple as that. Whenever you used the technique to calculate or to charge the performance fees, so it should easy easy method to understand it. Okay, so this is the main intention. Okay, so we have seen the equalization. What is the equalization and all? Even these are the types. Okay, and the simple equalization. Okay, so leave it. So there's even you can read it and understand this. So these are just okay. Suppose this is also important, like investment management agreement. So you should know that what is it and all. uh, Suppose sometime what happened, we don't disclose the types, so or the equalization method. So in that case, so investment management agreement will work there.
Okay, so and what is that? So even you can read in the description. It is essential to ensure that the equalization method chosen complies with the investment management agreement. Okay, so all the method should be as per the investment management agreement, or it should comply with that agreement. So agreement, it means it's a free consent given by the respective counterpart, whether buyer or seller. Okay, so it should like everyone should agree to it. So what is the meaning of agreement? We are agree with the terms and condition or clause which are having in that particular document. Okay, and then after we acknowledged it. Okay, so that is the agreement. So they have mentioned like many investment management agreements state that the investment manager will be paid an incentive fees of a 20% of a profits. Those, if a loss occurs, the investment management manager has to recoup the total loss before any further incentive fees can be paid. Okay. What must be made clear is that if an investor redeem during a drawdown period and thereby accept a portion of the loss, the amount of loss that the investment manager has to recover will be reduced pro rata basis. Okay, सिंपल, अगर कोई मैच्योरिटी के पहले जितनी टर्म्स दैट वी हैड साइंड with the hedge fund house, suppose before that we want to redeem our investment, even that fees also charged on a pro rata basis, जो कि 20% है एक साल के लिए, फिर एक क्वार्टर के लिए. समझो मैंने पहले ही मंथ में मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने निकाल ली, तो मुझे एक मंथ का ही चार्ज लगना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा बेसिस. जितने दिन मैं सर्व कर रहा हूँ उतने दिन का ही मुझे चार्ज लगना चाहिए. ठीक है. एंड कई बार ऐसे होता है कि they don't care. Okay, suppose you have contributed 1 crore in a hedge fund scheme, right? And after 1 quarter, now you the capital or at the entire, the value become now 80 lakhs only. So it means almost the 20% losses has occurred on your investment. So in that case, the neighbor said, or the hedge fund manager, the neighbor said, like, will not charge a 20%. Okay, so they will charge. They will charge it. क्योंकि पूरी सिस्टम पूरे तो लोगों को काम पे रखना, उनको सैलरी देना, ये सब चीज़ें और सिस्टम हर चीज़ इतनी इजी नहीं है, राइट. अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर पाया, दैट डजंट मीन कि उन्होंने कुछ एफर्ट्स पुट नहीं किए, तो दे विल चार्ज इट. ओके, सो दे विल चार्ज इट. बट यस, ये तो चीज़ें होगी, कितनी चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है, इट इज़ अगेन they will discuss with the investors, and on the basis of that they can negotiate on the incentive fees part, because the by default they are paying 2% fees. ठीक है. तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है. 20% देने के लिए जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक्स आप लोग कहीं से भी रीड कर सकते हो. कई बार पीपल आस्क मी कि अगर इंटरव्यू देने के लिए पूरे के पूरे टेक्निक्स पता होने चाहिए क्या. अगर आप कैलकुलेशंस कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई हायर कर रहा है आपको, देन यू शुड नो दैट, एज सिंपल एज दैट. ओके, and you are just looking for a, like, the settlement process or corporate action process, hedge fund corporate action process especially, or income process, or maybe other accrual calculation and all. So in that case you should know that. And apart from that, now suppose you're there in the middle of, sorry, the front office process. Front office means every day that you have to call to the investor and represent the data and all. So in that case also you should know that. In that case also यही नहीं बल्कि you should know each and everything, end to end product that you should know. ओके, एंड मैंने मेंशन कई बार ये मेरे डिस्कशन में करिए, कई सारे कंपनीज है वहाँ पे ये मैन्युअली कैलकुलेट करना होता है. इन दैट केस आल्सो यू शुड नो हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड ऑल. कैलकुलेशन पार्ट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग्स, क्योंकि अगर आप एक पेनी भी, 1% भी इधर उधर हो जाता है तो इट विल अफेक्ट. क्योंकि हेज फंड हाउसेस की वैल्यू होती है, समझो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़. 20,000 करोड़ इज समथिंग बिग अमाउंट यार. 20,000 करोड़ पे 1% क्या 1% का जैसे 1 सेंट भी इधर उधर हो जाता है, सो इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है.
तो ये याद रख के चलना है, ये 1000 के ऊपर 20% चार्ज करने जितना ही नहीं है, क्योंकि क्रोर्स में बात होती है यहाँ पे। 100 करोड़ के भी 20 करोड़, अगर 20% करोगे आप तो 20 करोड़ हो जाता है, राइट। अगर 10 करोड़ के भी 20 करोगे तो 20। ये तो इन्वेस्टर के साइड भी हमें एलोकेशन करना पड़ेगा, सॉरी द इक्वलाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी कुछ कम ज़्यादा चार्ज ना हो। ये फंड हेज फंड हाउसेस के तरफ से भी एलोकेशन करना पड़ेगा, ताकि जो चीज जो फीस हेज फंड हाउसेस की तरफ से कैलकुलेट हुई है अपने इन्वेस्टर्स ग्रुप के लिए, उनको सही से जानी चाहिए। मतलब यानी कि दोनों साइड से इक्वलाइजेशन वी हैव टू परफॉर्म इट। ओके, देन द पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट। ओके, सो ये एक एग्जांपल है, अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो, या फिर आई विल रीड इट। For investors subscribe, when they subscribe 1 million each, the total NAV would around 4 million. Then the NAV declined by 20%, मीन्स अगर इस केस में लॉस आ रहा है दोज द टोटल NAV होगा उसका अगेन 3.2 मिलियन ऑन इन्वेस्टर रिडीम हिज होल्डिंग इज इक्वल टू, अगर वो रिडीम कर रहा है अगर ओके, सो वन इन्वेस्टर रिडीम्स हिज होल्डिंग, अगर इतना रिडीम करेगा तो रिमेनिंग बचेगी ऑलमोस्ट 2.4। इफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैज़ टू रिकवर फुल लॉस, अगर उसको फुल लॉस, रिकवर का मतलब है कि एडजस्ट कर रहा है वो, ठीक है, तो उसमें टोटल एनएवी विल बी, अगर टोटल एनएवी इसमें से लॉस, टोटल लॉस कैलकुलेट, टोटल लॉस अगर माइनस करेगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 4 मिलियन है उसमें से 3.2 मिलियन क्यों है, क्योंकि ये जो लॉसेस आए 20% उसने टोटल इसमें से माइनस कर दिया। देयर फॉर रिमेनिंग शेयर होल्डर्स विल हैव मेड अगेन, ये जो है 2 मिलियन 20%, ये फ्री राइड बिटवीन देम, तो ये फ्री राइड हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो फ्री राइड, आई थिंक इन लास्ट सेशन मैंने मेंशन किया था ये फ्री राइड क्या है। फ्री राइड का मतलब है कि कोई इन्वेस्टर है जिसको प्रीवियसली कुछ जो फीस चार्ज हुई है उसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो डायरेक्टली उसने अभी एंट्री करी है तो अभी से ही वो फीस पे कर रहा है, यानी कि फ्री राइड कर रहा है एक क्वार्टर, पूरा क्वार्टर वो फ्री राइड कर रहा है, एंड उस जो एनएवी है उसका भी गेन उसको मिल रहा है, तो इसलिए उसको फ्री राइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी विच वाज अबाउट द इक्वलाइजेशन पार्ट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई प्रॉमिस्ड, तो एक मेथड दैट विल डिस्कस हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड द इक्वलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। एज आई मेंशनड, equalization is a very immensely complex subject, but there is no alternative, so we should have to work on it, right? So if you can gain a good understanding of the below, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, तो आई डोंट थिंक सो, so one example that I wanted to see. ओके, तो एक चीज़ हम पहले देखेंगे कि इक्वलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कैसे वर्कआउट चीज़ें कैसे करेगी यहाँ पे। इफ देर इज नो इक्वलाइजेशन प्रोसेस और बेंचमार्क in the hedge fund process, then what effect will be there on the hedge fund investors? Okay, so we'll see that first. Okay, so now see the NAV and the GAV for the first 6 month, and again this is for a 2 quarters. Okay, this is for next 2 quarters. Let's see. Okay, so Jan Feb, so here what is happening, just a minute.
is not working. Just a minute. Okay, so see this. So this is a quarter. This is a quarter one, and this is for quarter two. Quarter two ends here. Okay, and first quarter ends here. Shit. ओके, तो चलो रेट करते हैं, देखते हैं क्या कैसे निकलता है। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट वर्ड कई बार यूज होता है। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट का मतलब है कि जो वाटरमार्क होता है, हाइपर वाटरमार्क होता है वो। ठीक है, पहले तो हाइपर वाटरमार्क के बारे में भी मुझे कुछ बताना था। ठीक है, बट ये इन बिटवीन एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा कि क्या है। Okay, if we take a three investors here, the investor A, B, and C. Suppose the A investor purchased 100 shares on a 31st of Jan. So here the first investor entered into the scheme. The B investor entered on 13th of April, and the C investor entered on May 31st. Okay, so let's see so how it is. And this is even, so you should know that the NAV and JV for a respective month. Okay, so NAV begins from the Jan, so it means, so the entry point of that the hedge fund is your high water mark, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी NAV की, यही तुम्हारा हाई वाटर मार्क है। इसके अगर नीचे तुम्हारा 100 पर शेयर्स जो तुम्हारा NAV है, उसके नीचे अगर XYZ hedge fund perform करने लगता है, so in that case you don't need to pay the incentive fees for that particular quarter or for that particular month, क्योंकि जो high water mark which was decided by the hedge fund manager, right? So your fund, or that the fund is not able to perform the और the improve the performance of that particular month. ठीक है, तुम्हारा एनएवी था जैसे कि 100 था, जनवरी में भी 100 ही है, मार्च में भी 100 ही है। सो नाउ अभी मार्च जो मंथ है, हियर दैट वी हैव टू पे द इंसेंटिव फीस, या फिर वी हैव टू कैलकुलेट द इंसेंटिव फीस। बट at this point of time, suppose your NAV is also same like 100 for per shares or per unit, so in that case that you don't need to pay the इंसेंटिव फीस। ओके, सो यही लॉजिक यहाँ पे काम करता है, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ हाई वाटर मार्क। हाई वाटर मार्क मतलब एक बेंचमार्क है या फिर एक लेवल है जो सेट करके रखी है। जैसे कि हम कई बार ये बोल देते हैं कि 10% अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट परफॉर्म कर पाया तो ही मुझे फीस दे देना, राइट? अगर नहीं कर पाया तो मत देना। ये कई बार हम चीज़ें ऐसी बोलती है। तो वैसे ही ये यहाँ पर भी हेज फंड मैनेजर दे कमिट, लाइक सपोज वी could generate 20% return or 10% return or more than that, then only will charge you fees, so otherwise will not charge any fees to you. So यही जो होगा लेवल जो होगा, ये जो लेवल्स डिसाइड होता है एज इन द अग्रीमेंट, तो ये लेवल के हिसाब से ही पूरी चीज़ें आगे काम करती है। तो नाउ वी नो दैट अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो, द फंड हैज़ अ करंट हाई वाटर मार्क ऑफ 100, तो ये इंफॉर्मेशन चलिए। अ सिंगल क्लास ये जो होगा प्रोड्यूस मंथली एनएवी, यहाँ पे इस प्रोसेस में जो एनएवी प्रोसेस होने वाला है ये होगा मंथली, हम कैलकुलेट करेंगे। इसलिए यहाँ पर चार्ट में जो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है उसमें मंथली एनएवी डिस्कस किया हुआ है और जीएवी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वही फंड का नेम भी है एडमिरल XYZ, आप कौन सा भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिया। दिस इज़ फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर
has an incentive fees rate of 20% which is payable quarterly. So every investor that have to pay 20% incentive fees on their capital. ओके, एंड जो हाई वाटर मार्क जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, तो यही है, एक लेवल है, एक लिमिट है, उसके नीचे अगर काम करता है आपका हेज फंड या फिर परफॉर्म करता है, तो उस केस में क्यों आप भी क्यों दोगे फीस, क्योंकि 20% बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यही एक लिमिट है जो सेट होती है, या फिर एक कमिटेड रिटर्न जो आप बोल सकते हो उसे, कि उसी के लिए ये। ठीक है, अभी नीचे देखते हैं। इस केस में क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जो होगा 100 है, सॉरी फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जो होगा तुम्हारा मार्च है, एंड सेकंड तुम्हारा जून है। मार्च एंड जून 3 इन्वेस्टर्स भी है, अलग अलग समय पे वो एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इन्वेस्टर ये, सपोज ये बाइज 100 शेयर्स एट 100 पर शेयर, जो उसको पहला इन्वेस्टर है उसी के लिए जो एनएवी मिला है, यहाँ पे राइट 100 पर शेयर एनएवी मिला। एंड अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू है $1000। जब मार्च आया, मार्च में जब क्वार्टर एंड आया, क्वार्टर एंड आते आते जब उसका वैल्यू जो निकला, पर शेयर जो वैल्यू निकला 116, यानी कि इस केस में जो पहला क्रिस्टल पॉइंट था उस पॉइंट पे जो परफॉर्मेंस आया, ऑलमोस्ट फंड ने परफॉर्म किया है 20% के अराउंड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो 20% के अराउंड यहाँ पे दिया ही है कि जो फंड है 100 से लेकर 20 तक रीच हुआ है। जो 100 पर प्राइस पर शेयर जो प्राइस थी या फिर जो रिटर्न था वो 100 से लेकर के अभी 120 हो गया। तो उसी को अगर आप एनएवी कैलकुलेट करेंगे, एनएवी कैलकुलेट करने के बाद एनएवी का मतलब ये है कि जो फीस वगैरह होते हैं हमने डिडक्ट किया, जो अभी एनएवी मिला तो है 116। ठीक है, तो ये मार्च की बात हुई। जो पहले इन्वेस्टर की जो वैल्यू अभी है, नेट वैल्यू जो बची है वो है अराउंड $11,600, यानी कि 1600 रुपीज़ का उसको फ़ायदा भी है। अभी अप्रैल में जून की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्कशन है जो पहले एक का ही डिस्कशन हम करते हैं। सो एट द एंड ऑफ मार्च व्हेन इंसेंटिव फीस बिकम अ पेबल, द GAV पर शेयर इज नाउ एट 120। The HWM means high water mark. So make sure whatever committed the label, that whatever label that we have committed to the investor, we have to make sure that we are charging the return above that label, right? So therefore even you can see that in a formula as well. Fees are payable are the gross asset value minus high water mark into 20% is equal to, just calculate it, 120 minus 100 is your the high water mark into 20%. The 20% is the incentive fees that we are going to charge to our investor, is equal to 4 per share. So it means in the example also that you can see here. So the 120 is the gross asset value and the NAV is the net asset value. So we have deducted 4 per share. So it means, so net asset is 116. Okay. As an investor, you held 100 shares. So shares is around 400. Okay. So this means entire fees jitni pay hogi, ye hai 400. Okay. This then pushes then high watermark up to 20. अब ये हाई वाटरमार्क, ये यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है, क्योंकि जब क्वार्टर पहली एंड हुई, जब क्वार्टर पहली एंड हुई तो क्या हुआ, उसने 400 फीस पे कर दी हेज फंड मैनेजर को। ठीक है, ये इन्वेस्टर ने पहले क्वार्टर की जो फी थी 20%, तो उसने पे कर दी। अब फीस अगर पे हो गई है, फी कब तक की पे हो गई है, यहाँ पे आके देखिए। जो एनएवी है, जीएवी एनएवी जो भी, जीएवी पकड़ लीजिए, 120 तक जो जीएवी आया था उस लेवल तक की फीस पे हो गई है। ठीक है, तो अब जब भी तुम्हारा फंड परफॉर्म करेगा तो उसके ऊपर, यानी कि 120 के
ऊपर ही पे होना चाहिए, जो भी फीस पे होगी या फिर चार्ज होगी उसी के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि 120 तक के लेवल की फीस जो है ऑलरेडी ये इन्वेस्टर ने पे कर दी है, बेयर कर दी है। इसलिए जो 100 का बेंचमार्क था, क्रिस्टल पॉइंट था, अब 100 का 120 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर हेज फंड मैनेजर फी चार्ज करना चाहेगा तो उसकी लेवल होगी 120 के ऊपर। अगर कोई हेज फंड परफॉर्म करेगा तो ही इन्वेस्टर उसके ऊपर फी चार्ज करेगा। इट मींस जो HWM होगा अब चेंज होके, यानी कि जो क्रिस्टल पॉइंट अब जो रहेगा वो 120 का रहेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, यहीं पे समझ में आता है चीज़ें। बाकी कुछ चीज़ें मतलब आप सीखो नहीं सीखो भाड़ में जाए, बट ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अगर पहले फीस पे कर दी तो बाद में क्यों करूँगा मैं। सिंपली वी शुड हैव दैट इन माइंड। देन यहाँ पे देखिए, अब एट द नेक्स्ट end of the next sorry the at the end of the next crystallization point June 13 है, the shares have risen to 140 gross value. Again the incentive fees is 140 minus 120, जो 120 है up to 120 जो है we had paid fees, right? इसलिए now we are that we are not considering 120 लेवल टू कैलकुलेट द फीस, इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न जो होगी अभी जो 20 ही रहेंगे अगर आप ये करोगे तो। ठीक है, यानी कि इस क्वार्टर में 20 रुपीज पर शेयर हेज फंड ने गेन किया है। 120 से लेकर 140 परफॉर्मेंस, ये जो है 120 तक हमने फीस पे किया है, बट जब नेक्स्ट क्वार्टर एंड हुई सेकंड क्वार्टर तो उसकी वैल्यू दिख रही थी 140। सो 140 अगर वैल्यू दिख रही है मतलब 140 के ऊपर हम चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने 120 के ऊपर फीस चार्ज करी है, तो नहीं कर सकते। करेक्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 140 is the gross asset value minus 120 is the high water mark into 20% is equal to, when we do this calculation, then see this $4 for per shares and yes portion amount of rupees again 400. So he will pay the fees around 800 for entire 2 quarters to the hedge fund manager as incentive fees, as simple as that. ओके, एंड उसके अगर रिटर्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जो नेक्स्ट क्वार्टर भी उसका हुआ उसकी जो वैल्यू हो गई है $13,600। सो इट मीन्स ऑलमोस्ट उसने जो पैसे गेन किए हैं वो होंगे $3,200, $3,200। ओके, ये हुआ ए का पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि हमने कितना कमाया। उसने कमाई है टोटल फीस $800 गई है उसमें से, राइट। ये हम एट द एंड भी देखेंगे। ठीक है, अभी बी की बात करेंगे हम। इन्वेस्टर बी परचेज 100 शेयर्स एज एट 13th April. The GAV gross asset value per shares is 100, costing around 10,000 10,000. So investor B reaches first crystallization point at June, मतलब उसने एक क्वार्टर सर्व कर ली। तो क्वार्टर जब उसने सर्व कर ही ली है तो जब वैल्यू बनेगी उसकी अगेन 13,600 बनी है, उसकी भी वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि जो एवरी क्वार्टर जब हम एंट्री करते हैं जो NAV होगा सेम NAV से हम सीरीज एलोकेशन है, मतलब सीरीज 1 2 3, तो उसको भी सेम ग्रॉस एसेट वैल्यू से शेयर्स एलोकेट करते हैं, यूनिट्स एलोकेट होते हैं। ठीक है, तो अब ये डिस्कशन समझिए। सो एट द June 13th with the above calculated incentive fees per share is 140 minus 120, 120 अगेन हाई वाटर मार्क जो रहेगा उसी को भी मिला है जो बी इन्वेस्टर है। ठीक है, एक्चुअली ये ए को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये ने पहले क्वार्टर में भी फीस पे करके उस जो हाई वाटर मार्क है उसको इंक्रीज कराया है। ठीक है, मतलब जो पेन यहाँ पे बेयर होने वाला है इस केस में ये नहीं करा है। ठीक है, बी तो क्योंकि जिस जहाँ से एंट्री मारी है वहीं का पे कर रहा है, बट पीछे वाला कौन पे करेगा भाई, क्योंकि जो हाई वाटर मार्क की लिमिट है वो हर बार चेंज होते आई है। मतलब यहाँ पे यहीं पे आपको डिस्क्रिमिनेशन समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 140 माइनस 120 इंटू 20%, यहाँ पर भी $4 पर शेयर्स बी इन्वेस्टर को भी वही हो रहा है, तो बी इन्वेस्टर अभी फीस पे करेगा $400 ओनली। सो नाउ
Let's talk about the B investor, C investor. C purchases 100 shares at 13th April. The GAB 13 means जो क्वार्टर के बीच में कहीं उसने एंट्री करी है, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर एंड होने वाली है जून को, स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल को, तो उसने मई में एंट्री करी है, तो उसको जो प्राइस लगने वाली है 130 पर शेयर से इंटू 100 शेयर्स उसने लिए है, तो अराउंड उसकी जो वैल्यू जाएगी, अभी की करंट वैल्यू जो जाएगी 13,600 डॉलर, ठीक है। तो ये सो द सेम एज अबव फॉर बी as at June 13th with the above calculated incentive fees per shares of 140 minus 120 into 20% is equal to, this is the formula to calculate the NAV or GAV. Okay, so and considering that high watermark, so we should know that in the interview process also most of the time they ask about this formula and the technique how we calculate the fees and all, so we should know that. Even you can write it down somewhere and you can read it or mug up it if you want, or try to even understand it. If you understand it, so it will go long, so you don't need to mug up anything. Okay, and if you don't understand it, or suppose if you're not able to understand it, then mug up it, that's fine. Okay, so investor C also owes 400 as, मतलब यहाँ पे देखिए लेट एंट्री करने के बाद भी उसको 400 फीस पे करना हो रहा है। सेकंड इन्वेस्टर जो बी था, बी को भी 400 जब उसने एंटायर क्वार्टर बेयर करी है, एंड सी को तो 800 हुई है। यानी कि अगर आप कैलकुलेशंस यहाँ पे देखोगे समरी में, इन्वेस्टेड अमाउंट एक ही है, टोटल $10,000, जो ग्रॉस उसको गेन हुआ, टोटल एंटायर इनकम जो मिला है $4,000 के करीब है, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट 40% गेन किया है जो फंड है, ठीक है। तो इसने अगर 40% गेन किया है, तो परफॉर्मेंस फी जो उसने पे करी है, हमने देखा है कि पहले क्वार्टर वन द ए इन्वेस्टर पेड अराउंड $400 एंड इन सेकंड क्वार्टर आल्सो ही पेड अराउंड $400, ठीक है। अगर ये आप 800 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100 करोगे, तो आपको जो फीस टोटल पे हुई है वो पता चलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 40%, 20% के अराउंड उसने फीस पे करी है। यही अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 10,000 इन्वेस्टमेंट बी ने भी करी है, जितनी ए ने करी इन्वेस्टमेंट उसने भी करी है, ठीक है। बट अगर आप बी की बात करोगे, बी ने भी 4,000 गेन किया है, ठीक है, क्योंकि जो एनएवी था, जीएवी था सेकंड क्वार्टर का, आप देखोगे एंट्री पॉइंट, यानी कि अप्रैल में अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, अप्रैल में जब उसने एंट्री करी बी इन्वेस्टर ने, यहाँ पे कहीं करी है, यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू, यानी कि उसने इन्वेस्टर तो $10,000 किया है, बट उसकी जो वैल्यू बनी, क्योंकि जीएवी बन इंक्रीज हुई है, तो डेफिनेटली उसको भी फायदा मिलेगा, तो उसकी वैल्यू अच्छी खासी बनी, यानी कि 4,000 रिटर्न तो उसने भी अर्न किए हैं, ठीक है। ये इसको समझने के लिए याद रहे कि जो पहला इन्वेस्टर अभी तक उसने एग्जिट नहीं किया, जो ए इन्वेस्टर है अभी तक उसने, मतलब यानी कि सेकंड क्वार्टर तक उसने एग्जिट नहीं किया, बट एंट्री करने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं बीच में, यानी कि बी ने सेकंड क्वार्टर में किया, सी ने एक क्वार्टर जब एंड होने के पहले, थोड़ा सा पहले किया, 1 महीने में, तो यही है लॉजिक, ठीक है। फिर अगर ये सी की बात करोगे, तो सी की जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा है कंपेरेटिवली ए एंड बी, 13,000 इन्वेस्टमेंट है, एंड बट अगर उसके रिटर्न की बात करें, रिटर्न उसको कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए उसकी जो एंट्री है यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, ये एंट्री है, अगर उसकी एंट्री है तो उसने पे करा कुछ, जो पे हुई अमाउंट 130 फॉर पर शेयर से, यानी कि 12,000 कुछ उसको वहाँ पे लगा था, ठीक है। तो अगर ग्रॉस की मैं बात करूँ तो 13,000 उसको पे करना पड़ा, बट रिटर्न की बात करें तो उसको जो रिटर्न है सी का, देखिए यहाँ पे 130 माइनस 140, यानी कि $10 पर शेयर उसको रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो उसकी अभी जो वैल्यू बन रही है 13,600 कुछ, अगर 13,600 में से जो कैपिटल अगर माइनस करोगे तो कुछ अराउंड 1,400 समथिंग बचेगा, तो यहाँ पर समरी में अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ये
ये देखिए 13,000 माइनस 1, उसको जो गेन हुआ है वो है करीब $1,000। अगर उसको आप जो रिटर्न्स होंगे उसको, क्योंकि जो फीस है 20% सबको पे करनी होती है, तो उसने अगर 20% अगर फीस पे करी है तो यानी कि $400 के आसपास उसको भी पे करना पड़ा। जो नेट रिटर्न है उसके हाथ में जो बचेंगे वो है 600। तो यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जिसने कम रिटर्न गेन किया है उसने भी 40% पे किया है फीस। ठीक है, ये जो है वो फीस का पोर्शन है। जिसने ऑलमोस्ट कम समय में यानी कि ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर में, 3 महीने में जो रिटर्न गेन किए है 40% कह रहा हूँ, उसने यानी कि 40% अर्न करने के बावजूद उसने सिर्फ 10% फीस पे करी है। एंड जो बंदा लास्ट 2 क्वार्टर तक अभी भी हेज फंड के साथ है, उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है $10,000 ही है, बट उसको 2 क्वार्टर सर्व करना पड़ा। रिटर्न कितने अर्न करने के लिए? ये 4,000। ठीक है, बट उसको फीस कितनी पे करनी पड़ी? वो है 800, यानी कि 20% ऑलमोस्ट। ये यहाँ पर कुछ आपको इक्विटेबल नजर आता है? कुछ ऐसे लगता है कि इक्वलाइजेशन है? नहीं है ना। तो यानी कि देखिए जो ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है वो ज़्यादा फीस तो है नहीं है यहाँ पर, यानी कि कम फीस, यानी कि उसने देखिए बी ने ज़्यादा रिटर्न कमाए फिर फीस कम पे करी। वही अगर आप इसकी सी की बात करोगे, सी ने कम से कम रिटर्न अर्न किए हैं $1,000, फिर भी उसने ज़्यादा फी पे करी है। सो क्लियरली मतलब यहाँ पर जो इंडिकेट यही हो रहा है कि सो दिस इज नॉट एन इक्विटेबल वे टू पे इंसेंटिव फीस, right? Even you have seen that in the chart as well. So investor B has paid incentive fees of 10%, and he has gained the benefit of the high watermark increasing from 100 to 120 without paying any fees. So this is known, so ये important, so this is known as the free ride। जो फ्री राइड कॉन्सेप्ट यूज होती है यही है कि उसने जो हाई वाटर मार्क इंक्रीज हुआ है तो उस लेवल को इंक्रीज कराने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट स्टिल ही इज गेनिंग दैट बेनिफिट और ही हैज दैट एक्सेस टू गेन द एंटायर बेनिफिट। तो यही है, यानी कि बी इस केस में फ्री राइड कर चुका है। बट अगर वही मैं सी की बात करूं, सी की क्या गलती है? सी ने तो रिटर्न भी कम अर्न किए, एंट्री भी लेट करी है, तो उसको ज़्यादा फीस क्यों चार्ज हो रही है? ठीक है, तो ये इन्वेस्टर सी हैज हाउएवर पेड इंसेंटिव फीस फ्रॉम 120 अप टू 140 इवन दो द ओनली सब्सक्राइब्ड एट 130 पर शेयर। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज द अनफेयर क्लॉबैक। क्लॉबैक का मतलब है कि वही कि जो इनजस्टिस हो रहा है ना, कि मतलब जो सबसे ज़्यादा फीस मैं बेयर कर रहा हूँ लेट एंट्री लेके, एंड कैपिटल भी मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट, सबसे ज़्यादा फीस, और रिटर्न भी सबसे ज़्यादा, मतलब रिटर्न तो कम ही है मेरे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस लॉजिक को आप समझिए। ये चार्ट में अगर कुछ समझ में आता है तो देखिए, नहीं तो मत देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्चुअली। ओके, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यही था। ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था, एग्जाम्पल का पूरा जो मीनिंग है यही है कि कहीं ना कहीं पे अगर मैं रिटर्न सबको 40% जो रिटर्न है कहीं ना कहीं मैं सबको सेम दे रहा हूँ, जो एनएवी है सबको सेम अप्लाई हो रहा है, जेवी सबको सेम अप्लाई हो रहा है, देन व्हाई वी आर नॉट चार्जिंग इंसेंटिव फीस इक्वली टू ऑल द इन्वेस्टर इन स्पाइट ऑफ दैट when they where they entered? So that is again, there should some standard mechanism, there should some standard operating procedure to apply the incentive fees to all the investors. And if that is not there, so it means we are just discriminating or creating burden on someone else. तो इस केस में हेज फंड इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टर जो हम होते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर, वैसे नहीं होते हैं। फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। एंड कोई ऐसे इंडिविजुअल पर्सन, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई बैंक भी होती है जो इन्वेस्ट करती है उसमें। ये पैटर्न आप देखिए, क्योंकि बैंक होती है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हाउस होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकती है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती है, वो भी इन्वेस्ट करते हैं हेज फंड में। तो ज़रूरी नहीं कि कोई सिंगल पर्सन हो, जैसे इक्विटी में होता है ना कि किसी ने कॉल दिया, हमने लिया और इन्वेस्ट कर दिया, वैसे नहीं होता है यहाँ पे। ये पूरी चीज़ें ऑन पेपर होती है,
अग्रीमेंट होता है, उस पर कंसेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, साइन होती है, तब जाके चीज़ें वर्कआउट करना स्टार्ट करती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट यही था इस एग्जाम्पल का कि अगर सपोज इफ देयर इज नो इक्वलाइजेशन प्रोसेस, देन ये जो फीस होगी मतलब कितने परसेंटेज में वो अप्लाई हो सकती है जैसे, तो ये एक नाइंसाफ़ी है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इक्वलाइजेशन प्रोसेस आई है। एंड इसलिए अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। तो उसमें से एक मेथड्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले ये देखा कि वाई मतलब ये अगर नहीं है, सपोज इफ देयर इज नो इक्वलाइजेशन, देन क्या होगा, एंड इफ देयर इज अ इक्वलाइजेशन मेथड्स अगर हम इनेबल करेंगे इन्वेस्ट अपने इन्वेस्टरों के लिए तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ देम, सो विल सी ओनली वन मेथड। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, अगर हमें डिस्कशन पूरा ये जो डिस्क्रिप्शन है रीड करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, सो सीरीज ऑफ shares method, this is also one of the important method and easy method to understand to the investors as well. So that is what, so this method is called as like a user friendly method. Okay, so this in many people's opinions is the most user friendly and simplest of the equalization method. It requires the fund to issue a new series of shares. So means at every time or each time hedge fund house they need to allocate new unit to the investor. When someone entered new, so every time they will issue new unit to him. Okay, each time there is a subscription process. Every month, when calculating the NAV per shares, the correct incentive fees accruals, if any, are applied to each of the series separately. यानी कि every series जो होगी न्यू NAV के साथ होगी तो उसको न्यू फीस अप्लाई किया जाएगा। The first series of shares which are issued when the fund is launched is usually known as the lead series। जो पहले फर्स्ट टाइम जब स्कीम जो लॉन्च होगी एंड तब जो सीरीज जो यूनिट्स होंगे अवेलेबल किए जाएंगे इन्वेस्टरों के लिए, तो उसको लीड सीरीज कहा जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू consolidate each of the subsequent series issued into the lead series at the end of every accounting period, providing an incentive fees has been paid for each of the series including the lead series. So this may be quarterly, half yearly or annually। जो सीरीज एलोकेट करने का जो स्ट्रेटेजी होगा क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, ये समझने के लिए देखो दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जो हेज फंड होता है जैसे म्यूचुअल फंड के जैसा ही होगा, उसी में भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे इन्वेस्ट करेंगे, तो यानी कि जाहिर सी बात है जैसे म्यूचुअल फंड में कोई फिक्स नहीं होता है कोई कौन कब जाके वो यूनिट परचेस करने वाला है। आप समझो आज सब्सक्राइब करोगे, कोई बिगिनिंग से सब्सक्राइब करेगा, कोई एंड पे, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें राइट। तो कोई कभी भी आएगा कभी भी छोड़ के जाएगा। सेम हैपेंड इन हेज फंड एज वेल, बट वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे से होता है। इतना फ्रिक्वेंटली आप मतलब एग्जिट नहीं कर पाओगे और एंटर भी नहीं कर पाओगे। एक तो टाइम दिया होता है कि आप क्वार्टरली आइए, हाफ ईयरली आइए, फिर एनुअली आइए, क्योंकि जो पैसा होगा मेजरली डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम एग्जिट करना इट्स बिट डिफिकल्ट। वो काफ़ी काफ़ी मतलब बड़ा डिसीजन है, वो लेंदी है प्रोसेस, इतना इजी नहीं है। अगर आपने समझो कि 500 करोड़ एक छोटे से कंपनी में लगा दिया XYZ, अभी इन्वेस्टर बोल रहा है कि मुझे मेरा पैसा बैक चाहिए, तो ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, क्योंकि मैंने अभी पैसा इन्वेस्ट किया है। तो उसको पैसे बढ़ने के लिए समय इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को, अगर समय ही नहीं दिया तो कैसे चलेगा। तो इसलिए ये दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दी फीस एंड ऑल। तो इसलिए सीरीज़ अगर हम करें, एक सीरीज़ को सेम NAV के साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जब भी कोई एंट्री करेगा तो उसको वही सीरीज उतने यूनिट और उतने NAV के साथ परचेस करना पड़ेगा। एंड वो अगर मैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली करूँ तो वैसे ही मैं उसी को सेपरेटली आई कैन कैलकुलेट द इंसेंटिव फीस। तो इसी वजह से इस सीरीज को या फिर इस मेथड को, सीरीज ऑफ शेयर्स मेथड को ईजी मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, सो हाउ डज इट वर्क, जस्ट टेक एग्जाम्पल।
let us assume that the EA investor purchased 1000 shares at the launch of the fund at 1000 euro per share. So this will be the lead series of shares. For this example, we are assuming that the incentive fees are being paid quarterly. So in this case also we are paying incentive fees on a quarterly basis. Let us then assume that at the end of the first month, the gross NAV per lead shares risen to 11 1000 and 1100 UR, and therefore the NAV will be around, क्योंकि 20 जो होगा इंसेंटिव फीस होगा, अगर माइनस करोगे सो इट विल अराउंड 1800 रुपीज. At this time, investor B subscribe 1 million for 1000 सीरीज. सेकंड सीरीज के लिए बी इन्वेस्टर ने जब एंट्री करी तो उसने 1 मिलियन यूनिट्स यानी कि शेयर्स सब्सक्राइब करे, तो उसको भी सेम प्राइस मिलेगा. सॉरी, ये प्राइस उसका है. ठीक है, देखिए यहाँ पे जब एंट्री करा था उसने, यहाँ पर भी सेम, यानी कि जो बी इन्वेस्टर ने एंट्री करी है उसको भी सेम प्राइस मिल रही है. ए इन्वेस्टर ने एंट्री करी थी बिगिनिंग से है, उसको भी सेम प्राइस मिली है. ठीक है. एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ द वैल्यू ऑफ द फंड हैज अगेन जो बढ़ के 10% बढ़ी है, तो सो दैट द GNEV फॉर द लीड सीरीज इज नाउ होगी जो ऑलमोस्ट 1210, whereas the NAV जो होगा जो ग्रॉस नेट एसेट होगा जो सेकंड अराउंड 1100 का हो रहा है, देन द NAV फॉर द लीड सीरीज विल बी नाउ, अगर लीड सीरीज भी होगा तो 1168. और सीरीज सेकंड जो होगी 1080 नेट है, क्योंकि 20% जो होगा अक्रूवल्स हम चार्ज कर रहे हैं, जो फीस है इंसेंटिव फीस है. एट दिस स्टेज द इन्वेस्टर सी सब्सक्राइब अगेन, इन्वेस्टर सी भी आया. जब सी सीरीज चल रहा था, सीरीज अगर हमने उसको बेचा है फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग इन्वेस्टरों को, तो उसको भी सेम प्राइस मिल रही है. यानी कि हमने इस सीरीज में ये किया कि हर इन्वेस्टर जब भी वो सब्सक्राइब करेगा उसको सेम प्राइस हम एलोकेट कर रहे हैं. प्राइस का मतलब होता है कि NAV का जो अमाउंट है 1000 UR और पर शेयर्स, तो वो हम हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है. अभी देखो, लेट अस अज्यूम दैट एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ द NAV has it again risen by further 10%, so that the GNAV यानी कि ग्रॉस नेट एसेट पर शेयर्स ऑफ द लीड शेयर्स जो होगा 1331 UR, which translate यानी कि अगर हम उसको if we convert into NAV तो वही कुछ 1264 के करीब जा रहा है. सीरीज सेकंड की अगर हम बात करें तो उसका NAV होगा 1100, एंड अगर मैं यही थर्ड यूनिट की बात करूं तो वो होगा 1000 के अराउंड. दोज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, because a new high water mark has been again reached and each of the series of shares have paid incentive fees, क्योंकि तीनों सीरीज की जो हाई वाटर मार्क की लेवल थी उन्होंने क्रॉस कर चुके हैं, तो तीनों भी अभी फीस पे करने के लिए अप्लाइड है. The series second and the series third shares can now be consolidated into the lead series. सेकंड और थर्ड के जो पूरे शेयर्स थे उसको लीड सीरीज में कन्वर्ट किया जाएगा. सो दिस मीन्स that in effect the owners of series second and third series will sell or exchange their shares for a lead series. लीड सीरीज के साथ वो शेयर्स पूरे एक्सचेंज हो जाएंगे. Therefore investor B's shares are worth of 1168, which equates to 9, जो उसकी अमाउंट है पूरी शेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको अगर हम इनटू करेंगे शेयर्स एट द NAV पर लीड सीरीज, तो उसकी वैल्यू अगेन इतनी बच जाएगी. सिमिलरली इन्वेस्टर सी विल इफेक्टिवली लिक्विडेट हिज 1000 शेयर्स फॉर इतने वैल्यू के लिए अगर वो लिक्विडेट कर रहा है, एंड इफेक्टिवली इन्वेस्ट दोज प्रोसीड्स एज ऑफ द लिक्विडेशन इनटू द लीड सीरीज. तो उसका लीड सीरीज के अगर लीड सीरीज में अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो उसको इतना पे करना पड़ेगा 1264.2 पर शेयर्स टू रिसीव. बट उसको जो शेयर्स मिलेंगे 853.89 समथिंग लीड शेयर्स का जो पोर्शन होगा उसको मिलेगा, जो यूनिट्स उसको मिलेंगे इतने मिलेंगे. ठीक है.
So if the end of the third month, the value of the fund has declined by, this is 4%, then the lead series and the series second would still be profitable and could be consolidated. However, the series third would be showing a loss at a GNAV of 960 and so would not be consolidated. The series third would remain in existence until a new high watermark had been achieved, which would put the series 3 into profit. ठीक है, तो ये ऐसे सीरीज जो होगा ऐसे काम करता है, इस पैटर्न में काम करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि कुछ दिया हुआ है तो ये भी हम रेट करेंगे। इन्वेस्ट ये बाइज 1000 lead series shares at 1000 UR. End of the first month, the gross net asset value per shares has risen 10% to 1100 UR. The NAV published at around 1080. It means 20 UR has been applied as a incentive fees. Investor B buys now again 1000 quantity or shares series जो होगी at rupees again at dollar जो UR होगा 1000 UR. End of second month, value of the fund has again risen by further 10%, so that the GNAV lead series का जो होगा 1300 हुआ है तो वही सेकंड का 1100 होगा। इन्वेस्टर सी बाइज अगेन सीरीज थर्ड, सी इन्वेस्टर भी कम इनटू पिक्चर। तो अब यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द थर्ड मंथ द फंड वैल्यूज अगेन रीजन बाय 10%, सो दैट द GNAV लीड सीरीज का होगा, उसके आप वैल्यूज देख रहे हो। NAV देखिए, NAV है जो 1200 1100 एंड 1000, ठीक है। सो एज इट इज the end of the quarter and new high water mark has been achieved, the incentive fees are paid. Series second and third shares are the consolidated into lead series. अगर हम consolidate कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ये देखिए। इन्वेस्टर बी एक्सचेंज, अभी ए को तो ज़रूरत है ही नहीं है क्योंकि वो लीड सीरीज में है, तो हम बी और सेकंड और थर्ड सीरीज की बात करेंगे यहाँ पे। इन्वेस्टर बी एक्सचेंज 1000 सीरीज जो होगी शेयर्स नाउ वर्थ ऑफ 1160। ये जो अमाउंट है टोटल, अगर आप 1000 इंटू जो NAV होगा 1168 को इंटू करोगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो इसकी वैल्यू इतनी बन रही है। बट अगर फर्स्ट सीरीज में जो क्वांटिटी दी जाएगी वो कितनी है, ऑलमोस्ट जो लीड सीरीज है, लीड सीरीज यानी कि ये जो सीरीज होगा 1264.8 के साथ अगर मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ तो उसके जो शेयर्स उसको मिलेंगे, क्योंकि इस अमाउंट को आप अगर ये जो NAV के साथ डिवाइड करोगे तो कुछ शेयर्स आएंगे 923.466 मिलेंगे उसको, यानी कि मैं इसमें ये कर रहा हूँ प्राइस को पूरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही अगर थर्ड के साथ भी करूँ तो पूरी एंटायर इन्वेस्टमेंट 1264.80 के साथ अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो उसकी जो कुछ शेयर्स उसके हिस्से में आएंगे, बी इन्वेस्टर होगा, सॉरी सी इन्वेस्टर होगा 853.98 लीड सीरीज के आएंगे, ठीक है। तो ये फंडा ऐसे काम करता है। ये अगेन एंड अगेन कंसोलिडेट करना पड़ेगा, नए शेयर्स रिडीम करने पड़ेंगे, लिक्विडेट करने पड़ेंगे, नए ऐड करने पड़ेंगे सीरीज में, एक चैलेंज है। तो इसलिए ये टेक्निक को अगर आप देखोगे इजी भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी के जितने भी टेक्निक्स है पूरे के पूरे डिफिकल्ट है। बट इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि मैं हमेशा जब एक क्वार्टर दो क्वार्टर हो जाती है तो फीस अप्लाई कर रहा हूँ एंड जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको रिप्लेस करके दे रहा हूँ मैं जो मेरा लीड सीरीज होगा उसके साथ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम और इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनको फिर से मैं वैसे ही चार्ज करूंगा एंड ये सबको एक फेज पे लेके आऊंगा। ये होता ही रहता है, बट ये इजी कहा जाता है तो उसमें भी कुछ एडवांटेज और ड्रॉबैक्स भी आपको दिखेंगे, डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे। रिलेटिवली इट इज़ अ सिंपल मेथड, यस ऑफकोर्स सिंपल मेथड, बिकॉज जो सीरीज वाइज जो हम एलोकेट कर रहे हैं फीस, तो इसी की वजह से इसको इजी भी कहा जाता है। एंड ये इन्वेस्टर कैन सी हाउ इट वर्क्स, इन्वेस्टर को भी पता है कि ये कैसे चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे तो क्वाइट इजी मेथड है एंड इसका सिंपल है, तो एक में एडवांटेज भी है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, मेनी फंड्स ओनली पे इंसेंटिव फीस वंस अ ईयर एंड दिस मीन्स दैट द सीरीज ऑफ शेयर मेथड
cubism. Okay, if fund is heavily subscribed, expanding fund, and then by the end of the year it could have a 12 or 52 NAV calculated, or even 260 NAV is calculated daily. Separate series in issue. Okay, so it is not possible to publish a single NAV purchase because each series had its own NAV, which can be confusing to shareholders. So particularly if they make several investment into the funds over a period of time, and so end up with a holding that have a different NAVs. So it can be administratively, so that it is a time consuming and therefore expensive to list several series of shares on the stock exchange, because it will be necessary to apply to list each shares in a issue. तो ये दो डिसएडवांटेज यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बहुत बार मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं एनुअली फीस पे करते हैं अपने हिज फंड मैनेजर को, जैसे पैकेज वगैरह होता है ना एनुअली देता है बट मंथली आता है, तो वैसे होता है। तो ये इस उस केस में डिफिकल्ट जाएगा कि अगर फीस हमें ईयरली आ रहा है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर हम जो एनएवी होगा डेली कैलकुलेट करेंगे या फिर वीकली या फिर क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में भी हमें उसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। बट नेवरथलेस अगर हम चैलेंजेस की बात, अगर चैलेंजेस को भी अगर हम थोड़ा सा बाजू में रखें, तो ये एक क्वाइट सिंपल मेथड माना जाएगा। तो आप यही प्रिपरेशन करिए, या फिर अगर आप कहीं पे काम करते हो तो अगर आपको कुछ और टेक्निक्स पता है या फिर आपको कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो आ, आप मेरे साथ आप भी मुझे शेयर करिए कि आप कौन से टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हो, और शेयर करिए तो ताकि यही चीज़ और लोगों तक पहुंचेगी तो लोग समझेंगे अच्छे से। एंड अगर मैंने इस टेक्निक में कुछ मिस किया हो या फिर डिस्कशन में, क्योंकि ऑनेस्टली ये डिफ़िकल्ट है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए, तो अगर कोई ऐसा हो जिसको ये सब पता है, अच्छे से पता है, एक्सप्लेन कर सकता है, तो आई विल इनवाइट हिम एंड आप आपकी डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपके साथ पर्सनली डिस्कस करके विल डिस्कस दैट लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल, जो बहुत सारे लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही है। तो आज मैं यहीं पे इसी के साथ साइन ऑफ करूँगा। अगर कुछ रहा देन डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई है कि अगर आपको कुछ चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वी चार्ज ओनली 500 रुपीज़ फॉर जो फर्स्ट हाफ। अगर मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हो, इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। 499 विच इज़ स्मॉल अमाउंट। तो अगर है तो आप, एंड अगर फीस भी नहीं है तो ऐसे ही आपको कुछ थोड़े बहुत टिप्स चाहिए, फिर कुछ हेल्प चाहिए, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, हाँ, अगर आप पेड करके प्रॉपर एक चैनल फॉलो करके आओगे तो डेफिनेटली उसके एडवांटेज ज़्यादा हो गए। अगर आप सिर्फ एक कॉल में थोड़ी बहुत चीज़ें समझना चाहते हो, दैट्स इट, स्टिल यू कैन कॉल मी, ज़रूरी नहीं कि पैसा। एंड द इम्पॉर्टेंट इज़, तो ये चीज़ आप आपके लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये सबको मिले, इसका बेनिफिट सबको। ठीक है, तो यही मैं अभी रुक जाता हूँ। ये सेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए किया, ताकि मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था कि हिंदी और इंग्लिश में मैं कहूँ कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि ये डिफ़िकल्ट है टेक्निक इसलिए। ठीक है, ताकि अगर मैं इंग्लिश में कितना भी बोलूँ, लेकिन अगर ये सामने वाले को नहीं समझ में आ रही तो डिफ़िकल्टी है। एंड कई सारे व्यूअर्स है जो हिंदी भी है, तो इसलिए मैंने हिंदी में भी डेवलप किया है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू for your love that you are, again there are many more people who are appreciating my efforts, they are putting good comments, they are even texting me personally and saying, hey, you're doing great job, so keep it up and all. So I'll take that all the love that you are sharing, and again would request you, please share this content with more and more professionals who can watch to it, who can understand it. And again, uh, if this information or content help to them in their lives, and definitely it will feel proud to me as well. Okay, एंड मैं वही एक मेरा रिकग्निशन समझूंगा कि चलो यार आपको उसकी हेल्प हुई, तो वो वही उतनी ही चीज़ मुझे इट इट विल प्राउड टू मी एज वेल। ठीक है, तो मैं रुक जाता हूँ यहीं पे।
चलिए।